So what I was saying was to write a note that product B and product C shall be discontinued because it incurs huge losses. Write this note, write it down, because they have asked whether which product should be discontinued. Can you repeat the last? Statement. Okay, I'll repeat the statement. Note, first of all you have to write down note. Product B and C shall be discontinued. Product B and C shall be discontinued because it incurs huge losses. Okay. Yeah. So that's what they were asking, that prepare a income statement and suggest which product should be discontinued. Now, if I continue with product A and D, what will be my total profit? Simple. If I continue with product A and D, so A has profit of 41 and D has profit of 112. So 41 plus 112 is how much? 41 plus 112 is how much? For company as a whole, company will earn how much? 153. Yes. Are you getting my example? If company is continuing product B and C, then how much profit company would have? Suppose if B and C is not discontinued, then see, then 41 plus 112 minus 108 minus 45. How much should be the answer in your calculator? Just check. Just check. I will let you know then. 41 plus 112. 0. Yeah, wait. 41 plus 112 profits of A and D minus 108 minus 45 losses of B and C. Profits of A and D will be deducted from losses of B and C. So you will be able to calculate the overall profit of company. I'm asking you about the company. So what will be my overall profit if B and C is not discontinued? 0. 0. That means if suppose B and C products are not discontinued, then company will not earn anything. And if suppose I am discontinuing B and C product, so how much profit will I earn? 153. 153. This is what you have to write in a note. They have made a table, but write again, making the table सेम टेबल बनाइए, सेम एग्जैक्टली सेम. ऊपर वाली टेबल नीचे वापस उन्होंने कॉपी पेस्ट की है, बी और सी को छोड़ के ए और डी बनाए, और आंसर्स देखो ए एंड डी के वही आ रहे हैं 41 एंड 112. सो टोटल आंसर इज 153. तो ये तो हम नोट में भी बता सकते हैं ना, टेबल क्यों बनाए? टाइम थोड़ी नहीं होता है हमारे पास इतना एग्जाम में. चलो लिखो नोट. अभी जो हमने डिस्कस किया ना उसको नोट में लिखना है. लिखो, इफ द प्रोडक्ट ए बी एंड सी आर नॉट डिसकंटिन्यूड, if products B and C are not discontinued, comma, the overall profit of the company will be 0. The overall profit of the company will be 0. ब्रैकेट में लिख दो 0 कैसे आया? 41 plus 112 minus 108 minus 45. All the profits minus all the losses. ठीक है, आया 0 आया ना. Whereas next line पे आ जाओ, Can you 0 के repeat? बाद. Should I repeat once again? Yes, ma'am. See, guys, you need to write fast, huh? Listen very carefully. What did I say? How did I start the sentence? If product B and C are not discussed. Okay, okay. If the products B and C are not discontinued, if the products B and C are not discontinued, comma, the overall profit of the company will be 0.
द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विल बी 0. और 0 कैसे आया ना, वो ब्रैकेट में लिख दो. 41 प्लस 112 माइनस 108 लॉस माइनस 45 का लॉस. तो आपका आंसर देखो 0 आएगा. बस 0 कैसे आया ना, आपने उसको ब्रैकेट में लिख दिया. अब नीचे आ जाओ नेक्स्ट लाइन पे. वेयर एज मतलब अगर कंपनी बी एंड सी को डिसकंटिन्यू कर रही है तो कितना प्रॉफिट होगा, वो भी तो बताना पड़ेगा ना. लिखो वेयर एज इफ द कंपनी discontinuing product B and C, if the company is discontinuing with the product B and C, comma, the overall profit it would earn will be, the overall profit it would earn, tell me, the overall profit it would earn rupees 153. 153. The overall profit it would earn is rupees 153. मतलब 1,53,000. If B and C products are discontinued, then the company will naturally earn, definitely earn rupees 1,53,000. If B and C is discontinued, so this is the decision taken by the what to say, manager of the company, or you can say financial manager or cost manager of the company. Okay, so such type questions will be asked. Okay, now same question. I will try to find out same question. Okay, see, look at the sixth question. Sixth one. Product discontinuation. The financial accountant of Sonalisa Limited has presented the following product performance report for the year ended 31st March 2006. Everything is given ready-made available. You just have to check. Sales is given, variable cost, contribution, fixed cost, and profits are also given. How easy it is. See, profit is also given. Product A, 60,000 profit. Product B, 20,000 profit. Product C, 20,000 loss. Okay. So the total profit is 60,000. Now, what is asked in the question? See, the managing director of the company is of the opinion. What is his opinion? That the product C is not profitable product. कि प्रोडक्ट सी ना हमको लॉस करवा रहा है कंपनी को, एंड देयरफॉर इफ दे डिसकंटिन्यू टू प्रोड्यूस एंड प्रोडक्ट एंड मार्केट द प्रोडक्ट सी, द ओवरऑल प्रॉफिट विल गो अप. अगर मार्केटिंग मैनेजर क्या बोल रहा है कि अगर आप, मैनेजिंग डायरेक्टर बोल रहा है कि अगर आप ये प्रोडक्ट सी को एडवर्टाइज करना, प्रोड्यूस करना बंद कर दो तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा. You have been invited to analyze the situation. आपको बुलाया गया है कि आप ये सिचुएशन को समझें एंड मेक द प्रेजेंटेशन टू द मैनेजमेंट टू हेल्प देम टू टेक द फाइनल डिसीजन इन दिस मैटर. मतलब आप मैनेजमेंट को मदद कीजिए कि उनका डिसीजन ये राइट जा रहा है कि रॉन्ग है, कि प्रोडक्ट सी को डिसकंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू स्पेल आउट योर कंक्लूजन्स इन द मैटर. मतलब आपका कंक्लूजन क्या है, आपका ओपिनियन क्या है. तो देखो, देखते हैं, बहुत सिंपल है. अगर प्रोडक्ट सी, देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पे सम में क्वेश्चन में तो दिया हुआ है ना कि अगर मैंने प्रोडक्ट सी को कंटिन्यू किया तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, 60,000 ओवरऑल. अगर मैंने प्रोडक्ट सी को कंटिन्यू किया तो ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट कितना है, 60,000. लेकिन अगर मैंने प्रोडक्ट सी को डिसकंटिन्यू कर दिया तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा, कोई बताएगा मुझे. तो मेरा ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा अगर सी चला गया तो? 80,000. वेरी गुड. 80,000. So 60,000 from A, product A, and 20,000 from product B. So 60 plus 20, 80. और वैसे अगर मैं C प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रही हूँ, उसकी मार्केटिंग कर रही हूँ, उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ, तो भी मुझे वो लॉस ही दे रहा है 20,000 का. तो
80,000 में से 20,000 का लॉस तो वो खा जा रहा है, तो 60,000 प्रॉफिट बच रहा है कंपनी को। अगर मैं ये सी प्रोडक्ट बनाना बंद कर दूं तो ये लॉस खत्म हो जाएगा मेरा। तो मतलब मेरे हाथ में सिर्फ और सिर्फ 80,000 का प्रॉफिट बचेगा, सिर्फ प्रॉफिट ही बचेंगे मेरे हाथ में, लॉसेस कुछ होंगे ही नहीं। तो कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ेगा, नेचुरली बढ़ेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? यस मैम। तो अभी देखो यहाँ पे देखो, अगर आपका ध्यान है यहाँ पे तो कंट्रीब्यूशन ए का कितना है 240 और बी का कितना है 120। सी को तो मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया, मतलब सी का कंट्रीब्यूशन बच गया ना, सी का कंट्रीब्यूशन बच गया, मतलब उतना खर्चा अब मेरा नहीं होगा। कंट्रीब्यूशन खर्चा ही तो होता है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन में कितना कंट्रीब्यूट करती हूँ तो वो मेरा बच गया, 50,000 का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगा। देखो लिखा हुआ है नोट में, प्रोडक्ट सी शुड नॉट बी डिसकंटिन्यूड, मतलब मैंने भी यही उनको एडवाइस किया कि प्रोडक्ट सी को डिसकंटिन्यू करना चाहिए, सॉरी डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए। प्रोडक्ट सी को डिसकंटिन्यू क्यों नहीं करना चाहिए? अब देखो क्यों नहीं करना चाहिए, जब तक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होता है ना तब तक आपको डिसकंटिन्यू नहीं करना है। हाँ, जब जैसे ही आपका कंट्रीब्यूशन नेगेटिव हो जाएगा ना तो आप प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करने के लिए सोच सकते हैं। क्यों? ये देखो लॉजिक क्या है। Product C should not be discontinued as it is making positive contribution of 50,000. If this product C is discontinued, the total profit would be brought down by 50,000. इनफैक्ट वो 50,000 से प्रॉफिट कम हो जाएगा। ऐसे लेमैन की तरह हम लोग देखेंगे ना तो 80,000 का प्रॉफिट हो रहा है अगर सी प्रोडक्ट को बंद कर दिया तो, और अगर सी प्रोडक्ट को चालू रखा तो 60,000 का प्रॉफिट होता है। इसे लेमैन देखता है, जैसे अपन ने स्टार्टिंग में देखा। बट एक प्रॉपर एक्सपर्ट जो होता है ना वो क्या बोलेगा, नहीं जब तक कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है ना तब तक आप प्रोडक्ट को चालू रहने दो। क्यों? क्योंकि वो कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, आपको खर्चों में बांट रहा है ना। अभी समझो एग्जांपल ले लो, आप थ्री फ्रेंड्स हैं, पिकनिक पे जा रहे हैं, एक साथ घूमने जा रहे हैं, लंच करने जा रहे हैं, डिनर करने जा रहे हैं, तो खर्चा कम आएगा ना, ज्यादा खर्चा, ज्यादा डिवीजन हो जाएगा, 3 जनों में डिवाइड हो जाएगा। सपोज आपका खर्चा आया 3,000, तो 3 जनों में डिवाइड होके एक एक का शेयर कितना आएगा 111, मतलब 1,000 1,000 1,000। लेकिन अगर सडनली लास्ट मोमेंट पे एक फ्रेंड ने आपको मना कर दिया कि मैं नहीं चल पा रहा हूँ या मैं नहीं चल पा रही, तो अब 2 फ्रेंड्स जाएंगे, अब भी खर्चा 3,000 आया, ठीक है। तो 3,000 में आप 2 जनों में डिवाइड करोगे तो खर्चा बढ़ेगा ना, एक एक का शेयर बढ़ जाएगा ना, 1,500 एंड 1,500। मतलब क्योंकि वो थर्ड फ्रेंड नहीं था ना तो उसका जो 1,000 आना चाहिए था वो भी हमारे में बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, 500 वो भी हमको उठाना पड़ा एक्स्ट्रा। तो ऐसा ही कंपनी में भी होता है। अब कंपनी क्या बोलती है, मैनेजर क्या बोल रहा है आपको कि क्यों, मतलब एज एन एक्सपर्ट जो अपॉइंट किया गया है वो क्या बोल रहा है आपको कि कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है वो खर्चा उठाने में आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है, आपकी मदद कर रहा है, तो क्यों ना आप उसको कंटिन्यू रखो। तो 50,000 रुपीज का खर्चा वो उठाने के लिए रेडी है तो आप उसको कंट्रीब्यूशन करने दो ना, क्यों बंद कर रहे हो? समझ में आया? अभी देखो सिंपल है ना बहुत। ये देखो कंट्रीब्यूशन ए का कितना है 240, कंट्रीब्यूशन बी का कितना है 120। अगर सी को मैंने बंद कर दिया तो कंट्रीब्यूशन सी का चला गया, 50,000 चला गया, वो भी मेरे सर पे आ जाएगा, मतलब हम दोनों को उठाना पड़ेगा। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 360, 240 प्लस 120 360। अभी फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम रहती है ना, फिक्स्ड कॉस्ट तो कभी चेंज नहीं होती है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी बुक में दी हुई है, देखो क्वेश्चन में 350, वो अलग बात है। ये 350 में से कुछ हिस्सा 70,000 का फिक्स्ड कॉस्ट सी उठा रहा था, तो यही तो प्रॉफिट था ना, खर्चा उठाने के लिए तो वो बैठा है ना प्रोडक्ट सी। आप अगर उसको बंद कर दोगे तो फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा भी आप दोनों को उठाना पड़ेगा, ए एंड बी को, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड रहती है, चेंज नहीं होती है। तो 350 इज फिक्स्ड कॉस्ट, ये रहा 350 फिक्स्ड कॉस्ट। ये देखो प्रॉफिट कम हो गया ना, 10,000 हो गया प्रॉफिट आपका ओवरऑल कंपनी को देखो, ठीक है। तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन कितना है, तो कंपनी ए का 240, कंपनी बी का 120, सी को तो आपने निकाल दिया बेचारे को, तो कंट्रीब्यूशन आपके हाथ में टोटल कितना है 360।
360 में से 350 की तो कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट, तो बाकी आपके हाथ में 10,000 का प्रॉफिट बचा। तो ये होता है आपका एक्सपर्ट आइडिया कि आपको सी प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट इनफैक्ट कम हो गया 50,000 रुपीज से। पहले प्रॉफिट था 60,000 और अब प्रॉफिट है 10,000 रुपए। देखो लेमैन की तरह आंसर्स दे रहे थे ना हम पहले, ठीक है, पर वैसा आंसर नहीं देकर आपको कैसे आंसर करना है अभी आपने समझा क्लियरली, और मैंने एग्जाम्पल के जरिए समझाया। लेमैन टर्म्स में आपको पिकनिक का एग्जाम्पल दिया मैंने आपको कि फ्रेंड्स पार्टी पे जा रहे हैं तो 3,000 का खर्चा 3 जनों में डिवाइड होगा, एक जना कैंसिल हो गया तो 2 जनों को ज्यादा भरना पड़ेगा ना शेयर, तो कॉमन सेंस से प्रॉफिट हाथ में कम बचेगा क्योंकि आपका खर्चा बढ़ गया, ठीक है। और वो खर्चा पहले 3 जन उठाने वाले थे, अब 2 जन उठाने वाले हैं। इज इट क्लियर एवरीबडी, यस और नो? हाँ, Yes, ma'am. ऑफिशियली इसको सॉल्व कैसे करना है ये देखो। पहले आप एक टेबल बनाओगे जिसमें कॉलम्स बनाएंगे पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी, टोटल मतलब टोटल 5 कॉलम्स। कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट करेंगे, लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट, तो आपको मिलेगा प्रॉफिट। आई नो थोड़ा सा ब्लर है पर एटलीस्ट आपको विजिबल होगा, मतलब इतना तो है आपको समझ में आ रहा होगा। सो कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड कॉस्ट को लेस कर दिया तो आपको मिलेगा प्रॉफिट। ए का कंट्रीब्यूशन आपको ऊपर क्वेश्चन में दिखेगा 240, बी का कंट्रीब्यूशन ऊपर क्वेश्चन में मिल जाएगा 120, सी को तो मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया, तो दिखाओ सी का कॉलम बनाकर उसको नील करो कि मैंने सी को डिसकंटिन्यू कर दिया, तो सी कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं देगा, ठीक है। अब नहीं देगा तो बेचारा चला गया। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा 360, उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 350, टोटल सीधा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को टोटल में देखो तो आपका प्रॉफिट कितना होगा 10,000। तो आप नोट क्या लिखोगे नीचे, प्रोडक्ट सी शुड नॉट बी डिसकंटिन्यूड इन फैक्ट, क्यों? बिकॉज इट इज मेकिंग अ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 50,000, पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है वो 50,000 इन फैक्ट। And if the product C is discontinued, the total profit would be brought down by rupees 50,000. मतलब आपका इनफैक्ट टोटल प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, कितने से 50,000 रुपीज से। कैसे? पहले आपकी कंपनी अर्न कर रही थी 60,000 प्रॉफिट, अब आपकी कंपनी अर्न कर रही है 10,000 प्रॉफिट, तो 50,000 का प्रॉफिट कम हो गया ना। अब आई होप आपको समझ में आ रहा है, ये वही 50,000 रुपए है जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन सी के सर पे था, मतलब सी अपने सर पे 50,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन ले रहा था, अब वो नहीं ले रहा है, तो वही 50,000 रुपए प्रॉफिट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपको ए एंड बी को। आई होप मैं अपना 100% दे रही हूँ, आई होप आपको लॉजिक्स क्लियर हो रहे हैं। Yes, ma'am. यस चलो कम ऑन क्विकली मेक दिस सॉल्यूशन पार्ट। पहले टेबल बनानी है फिर नोट लिखना है। नोट में क्लियरली लिखा हुआ है प्रोडक्ट सी शुड नॉट बी डिसकंटिन्यूड एज इट इज मेकिंग पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ 50,000, और फिर फुल स्टॉप देकर लिखना है इफ द प्रोडक्ट सी इज डिसकंटिन्यूड द टोटल प्रॉफिट वुड बी ब्रॉट डाउन बाय रुपीज 50,000, ठीक है। चलो आप सेम कॉपी भी कर सकते हो या खुद से भी लिख सकते हो, तो आप लिखिए, मैं आपको 5 मिनट्स दे रही हूँ। Yes, completed, no? Yes, ma'am. Okay. So let us begin with the next question now. This 8th question. Boom and recession scenario means boom means economic condition where everything blooms, where everything is good, where everything employment is good, there is no poverty, means economy is well, working well. Okay, and recession means when economic situation is not so good, where there is poverty, unemployment, and illiteracy is increasing, illiteracy level. So you can say recession period is a bad period for economy. Okay. So two companies A, B, C and X, Y, Z sells the same type of product. दोनों same products बेचते हैं. The budgeted profit and loss account for the year shows the following information. क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है देखो, ABC की और XYZ की क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सेल्स
और वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों को माइनस करके बजटेड प्रॉफिट आपको निकाल के दिया, मतलब एवरीथिंग इज रेडी। सेल्स में से वेरिएबल और फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करके आपको प्रॉफिट हाथ में दे दिया। क्या बोल रहा है वो निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ ईच ऑफ द कंपनी। मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है? ब्रेक इवन पॉइंट। वेरी सिंपल, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। बिकॉज यूनिट्स तो है नहीं, पर यूनिट भी नहीं है, तो ब्रेक इवन पॉइंट का हम क्या बोलते हैं, यूनिट्स की फॉर्मूला तो लगा नहीं पाएंगे, तो रुपीस की फॉर्मूला ही सिर्फ लगा सकते हैं, बहुत इजी है। ठीक है। ऑल्सो स्टेट द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ ईच ऑफ द कंपनी। फिर उसने बोला ऑल्सो स्टेट विच कंपनी इज लाइकली टू अर्न ग्रेटर प्रॉफिट इफ देयर इज हेवी डिमांड एंड पुअर डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट। ये आई डोंट थिंक सो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेन क्वेश्चन है हमारा बीपी। चलो, तो इसके साथ हम एमओएस भी कैलकुलेट कर लेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्यों? क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट की फॉर्मूला क्या होती है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की फॉर्मूला क्या होती है? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो प्रॉफिट तो हमारे पास ऑलरेडी है, बजटेड प्रॉफिट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो लिखो, स्टेटमेंट बनाओ। हाउ मेनी कॉलम्स? particulars ABC Limited, XYZ Limited. अब इन्होंने ये अलग अलग क्यों बनाया है, आई विल टेल यू। और जाने दो, आप हाई और लो में मत बनाओ, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछेंगे, हाई डिमांड लो डिमांड। सो डोंट वरी, आपको जस्ट कैसे कॉलम्स बनाने हैं? पर्टिकुलर्स ABC एंड XYZ। ठीक है, आर यू फॉलोइंग मी? यस मैम। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। लिखो सेल्स, पर्टिकुलर्स में लिखो सेल्स। अभी ABC लिमिटेड का सेल्स कितना है? टेल मी, कम ऑन क्विकली। 1,50,000। यस। XYZ का सेल्स कितना है? 1,50,000। दोनों का सेम है, आप लिख दीजिए दोनों में 1,50,000 1,50,000। नेक्स्ट लाइन, लेस वेरिएबल कॉस्ट। हम ये नहीं बनाते थे अगर कंट्रीब्यूशन मिला होता था तो। अभी इनकम स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं बना हुआ है ना, इसके लिए हमको बनाना पड़ रहा है। लिखो लेस वेरिएबल कॉस्ट। बोलो ABC लिमिटेड का वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 1,20,000। यस। एंड 1,20,000। XYZ का कितना है? 1 लाख। यस। दोनों को लिखो 1,20,000 1 लाख और दोनों को ब्रैकेट में डाल दीजिए। ओके, सो 1,20,000 माइनस करेंगे 1,50,000 से, तो ABC कंपनी का कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 30,000। वेरी गुड। और XYZ में 1 लाख को माइनस करेंगे 1,50,000 से, तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 50,000। 50,000। वेरी गुड। अब कंट्रीब्यूशन तो आपको मिल गया, एक 30 एक 50। अब आप फिक्स्ड कॉस्ट को लेस कीजिए, लेस फिक्स्ड कॉस्ट। दोनों A कंपनी का है 15,000 और XYZ कंपनी का है 35,000। 15,000 एंड हम दो 35। दिया है ना रुपीस। जी नहीं, मैंने समझा नहीं आपका, आप फिर से बोलेंगे? डाउट। मैम 15,000 भी दिया है इसमें और 1,35,000। हाँ, वो 1,35,000 तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट का टोटल है जो बाहर लेकर आए हैं, वो दो फिक्स्ड कॉस्ट ओके। नहीं है। ये ABC कंपनी का जो कॉलम बना हुआ है ना, ये इनर कॉलम है या आउटर कॉलम है? हम कैसे इनर कॉलम में बहुत सारे आइटम्स होते हैं तो पहले इनर कॉलम में लिखते हैं, फिर प्लस करके आउटर में लेके आते हैं। बच्चा समझ आ यस रहा है मैम, आपको समझा कि अभी डाउट है? राजा, समझा। हाँ ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट को लिखो आप पहले 15,000 A कंपनी का और X कंपनी का 35,000, दोनों को ब्रैकेट में डालकर बजट मतलब सॉरी प्रॉफिट बताओ मुझे। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, तो आपको मिलेगा प्रॉफिट। तो मुझे बताओ आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है? 15,000। और XYZ का? 15,000।
दोनों का सेम 15,000। अब नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, नीचे टेबल के नीचे आ जाओ, लिखो कैसे लिखना है ये देखो, मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको। ये कौन सा सम नंबर कौन सा है? दिस इज सम नंबर 6 ना, नहीं 8। दिस इज सम नंबर 8। हाँ 8। तो आपको कैसे करना है ये देखो, BEP इज इक्वल्स टू, पहले फॉर्मूला लिखनी है आपको, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अब आपको पीवी रेशियो नहीं है तो वो निकालना पड़ेगा, तो पर पहले आपको ये लिखना है। उसके बाद ये देखो यहाँ पर आप ए कंपनी का, ABC कंपनी का निकालोगे, और 2-3 लाइंस छोड़कर आप XYZ कंपनी का निकालोगे। पर निकालने के लिए आपको, चलो बताओ, ABC कंपनी का फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? ABC कंपनी का फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 15,000, और XYZ कंपनी का कितना है? 35,000। यस, सो यू हैव टू, आई मीन ये आप लिख के रखो, उसके बाद हम पीवी रेशियो सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब 2-3 लाइंस छोड़ के आपको पीवी रेशियो निकालना है। यहाँ पे आप लिखोगे पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। सो ABC कंपनी का कंट्रीब्यूशन कितना है? आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। ABC का कंट्रीब्यूशन कितना है? 30,000। 30,000 डिवाइडेड बाय सेल्स कितना है? 1,50,000। इनटू 100 करके आंसर बताओ कितना आ रहा है पीवी रेशियो का। कम ऑन क्विकली। 20%। 20% आ रहा है ए का। XYZ का सेम हमको वैसे ही करना है। XYZ इज इक्वल्स टू, बोलो कंट्रीब्यूशन कितना था? सो फार आई रिमेम्बर 50,000 था। सेल्स मेरे ख्याल से दोनों की सेम थी। अमाउंट्स मैंने सही लिखे हैं दोनों के, कंट्रीब्यूशन और सेल्स के। बोलो 50,000 डिवाइड बाय 1,50,000 into 100 is how much? 33.33%। 33.33%। अब आपको ऊपर जाकर ये फॉर्मूला अप्लाई करनी है। ए कंपनी का पीवी रेशियो है 20%, तो आप लिखोगे 15,000 डिवाइड बाय 20%, तो आपको आंसर मिल जाएगा। बोलो 15,000 डिवाइडेड बाय 20%, 75,000। आंसर विल बी 75,000। बट व्हाट 75,000 रुपीज? ओके, सिमिलरली आपको ऐसे XYZ का करना है। XYZ का पीवी रेशियो था 33.33%। रिमेंबर जो रिकरिंग होता है ना, उसमें आप एक्चुअली रिकरिंग कैलकुलेट करते हो, रिकरिंग ही डालते हो आप कैलसी में भी। तो 35,000 डिवाइडेड बाय 33.333333 रिकरिंग निकाल कर फिर परसेंटेज की साइन डालो, तो आपको ना आंसर बिल्कुल परफेक्ट मिलेगा। बोलो व्हाट इज योर आंसर? 1,05,000। Yes. So it will be 1,05,000 PV ratio. Sorry, BEP. So आपका BEP Rupees। कितना है? फर्स्ट का 75 और सेकंड का BEP है 1,05,000। यस, रुपीज 1,05,000। ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है सेकंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी की फॉर्मूला क्या होती है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। आपके पास ऑलरेडी पीवी रेशियोज हैं, ठीक है? एबीसी कंपनी का हम लोग पहले निकालेंगे। बताओ, एबीसी कंपनी का हमने प्रॉफिट कैलकुलेट ऑलरेडी करके रखा है। बोलो कितना प्रॉफिट है? 15,000। और पीवी रेशियो भी हमने कैलकुलेट किया है। सो 20%, 15,000 अपॉन 20%। सो व्हाट इज योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी? रुपीज 75,000। Yes. Now calculate same for XYZ company. Calculate same for XYZ company. बोलो XYZ कंपनी का प्रॉफिट कितना है? 15,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना है? 33.33%।
पर कैलकुलेट जब आप डालोगे तो 33.3333 रिकरिंग डालकर फिर परसेंटेज डालो तो आपको आंसर थोड़ा राउंड फिगर मिलेगा। बोलो 45,000. 35,000 rupees. Okay, so here are your answers. ठीक है, आई होप देर आर नो डाउट्स। हैं कुछ डाउट्स? क्लियर हुआ ये कैसे कैलकुलेट किया हमने? बीपी निकाला पहले एबीसी और XYZ का, फिर MOS निकाला ABC एंड XYZ का। क्योंकि हमको पीवी रेशियो चाहिए था तो पहले हमने पीवी रेशियो बीच में एज अ शॉर्ट एज अ क्या बोल सकते हैं इसको, वर्किंग नोट करके कैलकुलेट किया। ठीक है, एनी डाउट्स? No. Okay. So I think we can wind up for the day. It's already 2:30. You will be having another lecture also, and we can continue in the next lecture. Okay. I think 4 to 5 or 4 to 6 sums more, and then we will be done with this chapter also. So maybe another Tuesday and Wednesday, and then we will be winding up this chapter as well, marginal costing 2. Okay, shall we wind up? Yes, ma'am. So see you in the next lecture. Meanwhile, please keep revising, and you have internals also. So all the best for your internal exams, and we'll meet another week for I mean continuing our syllabus part. As soon as possible, we will complete our syllabus also, because after this chapter we have only 2 left with us, and that is unit number, last unit. I don't remember the unit number, but it is last, and we have 2 chapters in that: standard costing, and we have responsibility costing. So very interesting chapters, both practical chapters are there after this. Ma'am, can you Yes. repeat the internal portion? Internal portion is, I will tell you, ABC, that is activity based costing chapter, and second हाँ. chapter is transfer pricing, and third chapter is marginal costing 1. This is marginal costing 2. I am not telling you about 2, I'm telling marginal costing 1 will come in the syllabus of internal paper. Okay, ma'am. Okay, please note, Yeah, ma'am. marginal costing 1 will come. Marginal costing 2 decision based problems will not be asked in the what to say, internal Internal. pattern. Yeah. Okay. Yeah, ma'am. So I hope there are no further questions or doubts, and we can wind up with the lecture. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. Bye everybody. Take care. All the Thank you. best for your internal exam. Thank Thank you, you, ma'am. ma'am. Yeah. Bye, ma'am. Bye. Bye everybody.